Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home. Dear students, I, Munish Yadav, PGT Economics from Suraj School Bhiwadi. Again, we are here to discuss about a very important topic related to chapter 6. So, we are studying our chapter 6, price elasticity of demand, and successfully we had completed both the methods of price elasticity of demand, proportionate or percentage method. Second was geometric method. So in proportionate method, a simple formula is ED equals to minus percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. We can apply this formula if direct percentage is given, or if suppose direct percentage is not given, then we can apply this one, ED equals to minus P upon Q, change in Q upon change in P. Okay, so dear students, in geometric method yesterday we had completed that a midpoint showing the ED equals to 1, and the point above the P point, midpoint, is upper segment, and the point below the P point is lower segment. We had yesterday completed. Okay, then after a very important point, degrees of price elasticity or demand, yesterday we had also completed that one. That price elasticity degrees are divided into 5 categories. 5 categories are here. ED equals to infinity, that is perfect elastic. Infinity means perfect elastic. Perfectly inelastic means ED equals to 0. ED equals to 0. Unitary elastic means ED equals to 1 or more than. Unitary elastic means ED is greater than 1, and less than unitary means ED is less than 1. Okay, so successfully we had completed all the 5 points. So today diagrammatically we also completed that point. Yes, so today one more information that I want to disclose with you, disclose in front of you, that dear student, ED equals to 1 we can show by the straight line. Like here we can show as a straight line because the percentage change in price and percentage change in quantity both are same, both are equal. Okay, and we can also show it by the rectangular hyperbola. This is the rectangular hyperbola shape. Okay, and whenever two EDs are given, suppose diagrammatically दो ED अगर आपको given है, two demand curves given है, तो how will you identify that it is elastic or more elastic? So flatter one will be the more elastic. जो सबसे ज़्यादा flatter होगा वो more elastic होगा, और जो steeper होगा, flatter means थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और जो एकदम झुका हुआ है दैट इज स्टीपर, वो लेस इलास्टिक होगा. तो इसको आप क्या, फ्लैटर को आप दिखा सकते हो ED ग्रेटर देन 1, एंड स्टीपर का क्या मतलब होगा बेटा, स्टीपर मीन्स ED इज लेस देन 1. ओके, so you must know about that when two diagrams, two demand curve given simultaneously, so which one is flatter and which one is steeper. Flatter means elastic or steeper means inelastic, less elastic. Okay, so today the last topic from this chapter is factors affecting price elasticity of demand. It means which factors always affect the demand, price elasticity of a demand. Okay, so first is nature of the commodity. So my dear student, nature means how we use that commodity. It means it is a necessary, luxurious, comfort, or which categories प्रोडक्ट वी आर यूजिंग, विच कैटेगरीज कॉमोडिटी वी आर यूजिंग, किस कैटेगरी की कॉमोडिटी को हम यूज़ कर रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट, नेसेसरी थिंग्स मीन्स विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए इतनी ज़रूरी होती है. विदाउट दीज कॉमोडिटीज़ वी कांट सर्वाइव इन अ perfect manner. So necessary goods means salt, we can't survive without. Kerosene oil, matchboxes, textbooks, seasonal vegetables. सो डियर स्टूडेंट्स, जिनकी डिमांड हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, सिंपल वर्ड में आपको बताती हूँ, द डिमांड फॉर दोज कॉमोडिटीज़ वी कांट पोस्टपोन फॉर फ्यूचर, वो होंगी इन इलास्टिक. और जिनकी डिमांड को हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, ओके वी आर नॉट बाइंग राइट नाउ बट इन फ्यूचर जब भी ज़रूरत होगी हम खरीद लेंगे. सो वो डिमांड कैसी है बेटा, वो है इलास्टिक. तो जिसकी डिमांड चेंज नहीं हो सकती उन्हें हमें सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूम करना ही पड़ेगा, वो इन इलास्टिक है. और जिनकी डिमांड चेंज हो सकती है वो
आपकी होगी इलास्टिक। ओके, चेंज मीन्स इलास्टिक, क्योंकि चेंज इलास्टिक को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने इलास्टिक को देखा हो कभी, इलास्टिक मीन्स लचीला होता है, इट मीन्स फ्लैक्सीबल, और इन इलास्टिक मीन्स नॉट फ्लैक्सीबल। तो जिसे चेंज कर सकते हैं वो फ्लैक्सीबल है इलास्टिक, और जिसे नहीं कर सकते वो इन इलास्टिक है। सो हम सोल्ट, कैरोसिन, मैच बॉक्सेस, टेक्स्ट बुक, सीजनल वेजिटेबल्स, इनकी डिमांड को हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी डिमांड कैसी होगी? डिमांड ऑफ दीज कॉमोडिटीज़ विल बी inelastic, okay, less elastic। और लग्जरी गुड्स लाइक फैशनेबल गारमेंट्स, फर्नीचर, कॉस्टली फर्नीचर, महंगा फर्नीचर, एयर कंडीशनर और महंगी कार, ये सब हमारे कंफर्ट के लिए होती हैं। अगर है तो भी काम चलता है, नहीं है तो भी काम चल जाता है। सो इनकी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक होगी, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए इन्हें डाल सकते हैं। और कंफर्ट गुड्स मीन्स, कंफर्ट गुड्स में आपका मिल्क हो गया, ओके, और कूलर हो गया, फैंस हो गया, इनके बगैर भी हम थोड़ा कंफर्ट फील नहीं करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेस इलास्टिक होंगे। ओके, समझ आया आपको? तो नेसेसरी गुड्स इन इलास्टिक, लग्जरियस गुड्स इलास्टिक, और कंफर्ट गुड्स लेस इलास्टिक। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स, जिन कॉमोडिटीज़ के सब्सिट्यूट्स ईजिली अवेलेबल होते हैं तो हम उसे छोड़कर उसका सब्सिट्यूट कंज्यूम कर सकते हैं, इट मीन्स डिमांड विल बी इलास्टिक। सो दो चीज़ें याद रखनी है, जिनके सब्सिट्यूट्स हैं, द सब्सिट्यूट्स फॉर द कॉमोडिटीज अवेलेबल, देन डिमांड विल बी इलास्टिक, और इफ सब्सिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, डिमांड विल बी इन इलास्टिक। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, diversity of uses. So if we can put the use of the commodity in several use, अगर हम उस commodity को कई सारे यूज़ में डाल सकते हैं तो वो इलास्टिक है, और अगर उसका सिंगल यूज़ है, दिस इज़ इनइलास्टिक। ओके, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, जिस कॉमोडिटी के यूज़ को वी कैन पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, दैट इज़ इलास्टिक। और वी कांट पोस्टपोन द यूज़ ऑफ द कॉमोडिटी, अगर उसका फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते तो इन इलास्टिक। इनकम लेवल ऑफ द बायर, डियर स्टूडेंट, इलास्टिक डिमांड ऑल्सो डिपेंड्स, इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड ऑल्सो डिपेंड ऑन द इनकम लेवल ऑफ द बायर। जो पुअर पार्ट है उसके लिए डिमांड, हर चीज़ की डिमांड इनकम के हिसाब से होती है। इनकम है तो वो उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे, इनकम नहीं है तो वो उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करेंगे। ओके, तो पुअर पार्ट के लिए जो डिमांड है वो होगी इलास्टिक, इनकम है लेंगे, नहीं है नहीं लेंगे। और जो रिचर पार्ट है, दे कांट पोस्टपोन देयर डिज़ायर, दे कांट पोस्टपोन देयर नीड्स, वो अपने नीड्स को कभी भी फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ते, बिकॉज दे हैव इनफ मनी टू बाय द कॉमोडिटी राइट नाउ। सो रिच पार्ट की जो डिमांड होगी वो कैसी होगी? इट विल बी इन इलास्टिक। ओके, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, येस बेटा, हैबिचुअल गुड्स मीन्स सिगरेट, लिकर, टबैको, दीज आर द हैबिचुअल गुड्स, जिनके बगैर इंसान नहीं रह सकता, जिनको इनकी हैबिट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हैबिचुअल गुड्स हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक है, किसी भी कंडीशन में लोग उसे कंज्यूम करेंगे। यू कैन सी द पिक्चर्स, लाइव पिक्चर्स इन टीवी और न्यूज़ चैनल्स, लाइक हाउ द पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ लीकर शॉप्स, जिनको शराब की ज़रूरत होती है लीकर की, वो कैसे शॉप्स के बाहर खड़े हुए हैं मॉर्निंग से। सो दिस इज़ बिकॉज द लीकर इज़ हैबिचुअल गुड्स, जिन लोगों को जिसकी हैबिट हो जाती है, दे कांट सर्वाइव, दे कांट स्टे कंफर्टेबल विदाउट कंज्यूमिंग दीज कॉमोडिटीज़। सो हैबिचुअल गुड्स की डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। बट जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक है, वी कैन ईजिली पोस्टपोन द यूज़। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कॉमोडिटी, इट मीन्स अपनी इनकम का हम कितना पार्ट खर्च कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सपोज आई नीड अ नीडल, मुझे एक सुई की ज़रूरत है, नीडल की ज़रूरत है। सो हार्डली इट विल बी फॉर ₹1 और ₹2, वो 1 या 2 रुपये में आएगी। सो आई विल नॉट पोस्टपोन माई डिमांड फॉर फ्यूचर, मैं उसे उसी टाइम खरीदूँगी। तो इट मीन्स जो स्मॉल पार्ट इनकम हम खर्च करते हैं उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। बट अगर मुझे एक 50,000 का फ़ोन लेना है, मुझे कोई 10,000 की ड्रेस लेनी है, तो मैं देखूंगी अगर मेरे पास इनकम है देन आई विल बाय, अदरवाइज आई विल रिफ्यूज़ टू बाय इट। तो अगर इनकम का बहुत बड़ा पार्ट खर्च हो रहा है तो हम उसे सोच समझ कर खर्च करेंगे। सो डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक होगी। एंड द लास्ट इज़ सेकेंड लास्ट इज़ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल इज़ ऑल्सो, हाई प्राइस की जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि पैसे हैं तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। बट जो लो प्राइस है उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, लोग उसे खरीद लेते हैं। टाइम पीरियड, यस डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट वन।
short period means we can't change anything, we can't change our income level, we can't change our habits, so short period में demand inelastic होगी. But in long period we can earn more income, we can leave some bad habits and adopt some good habits. So in the long period we can change the demand for a particular commodity. It means short period time period हमेशा show the inelastic demand and long period always show the elastic demand. So dear student, study from your book all the points carefully, and if you are facing any doubt, dear student, so call me and send messages, I will help you out. So stay blessed, stay safe, stay healthy.